Dear students, a very good afternoon to all of you. We are nowadays we are discussing, we are learning about the transformation of the sentence, how simple sentences are converted into complex sentences and complex ones to simple sentences. And in the previous lesson we learned how we can convert simple sentences into complex sentences into simple sentences. Here is an example for us. He composed a song on how beautiful she was, right? He composed a song is its principal class. As you know, the complex sentences are divided into classes, principal class as well as subordinate classes. Here he composed a song is a principal class and its subordinate class is how beautiful she was. Now, how can we transform this sentence, this complex sentence, into simple one? First, we will examine minutely, or we should be able to identify the difference between the principal class and the subordinate class. Here he composed a song is a principal class. How beautiful she was is it is a subordinate class. Beautiful is noun form, and we will turn it into beauty. And there's an adjective she was. She is changed into her. He composed a song based on her beauty. It is simple form or simple sentence. And in the simple sentence, only one finite verb is working, or only one finite verb works. That's composed. He composed a song based on her beauty. Let's discuss another example. Another example is in case of it. Another example is it is well known that he is an artist. यहाँ देखिए, it is well known that he is an artist. और हमें क्या करना है? What we have to do? We have to do some important things. That is, first, cut indefinite word. Indefinite word is it. We have to cut it. Number second, we have to cut its helping verb. Helping verb is it's the verb and is helping verb. Number three, we have to cut its subordinator. Subordinator is that. When we omit cut, when we omit it, when we omit is, when we omit that, what's the remaining part? He is a well-known artist. He is a well-known artist. It is simple sentence. And previously, what it was? It was it is well known
that she is an artist. Now it becomes he is a well-known artist. Means there were more than one uh, verbs, more than one verb working in the sentence, simple sentence, and two clauses were there. Here one clause is there and one verb is working or active or functional. मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हम पहले सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे. जब हमने सेंटेंस को पढ़ लिया तो फिर इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका इंडेफिनिट वर्ड कौन सा है. इसको हम कट करेंगे, सेंटेंस से निकाल देंगे और फिर इस क्लास में, किस क्लास में, जो प्रिंसिपल क्लास में है, इसमें से इज़ भी हम निकाल, हेल्पिंग वर्ब भी निकाल देंगे. चाहे इज़ हो, एम हो, वॉज हो, वाया हो, जो भी हो, इसको हम निकाल देंगे. उसको भी निकाल दिया. और सबऑर्डिनेटर जो एक लिंक क्रिएट करता है दो क्लास के दरमियान, चाहे दैट हो या विच हो, हु हो, इसको हम निकाल देंगे. यहाँ दैट है, इसको हमने निकाल दिया. अब यहाँ पर रह गया ही इज़ एन आर्टिस्ट. और हम इसको जो प्रिंसिपल क्लास में वेल नोन था, जो उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने इसके साथ मिला दिया, वेल नोन को इसके साथ मिला दिया, तो ये बन गया ही इज़ अ वेल नोन आर्टिस्ट. करेक्ट. अब और एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. एज द एग्जाम वॉज ओवर द स्टूडेंट्स वर फ्री. एज द एग्जाम वॉज ओवर द स्टूडेंट्स वर फ्री. एज द एग्जाम वॉज ओवर, ये क्या है, ये है सबऑर्डिनेट क्लास. द स्टूडेंट्स वर फ्री, ये है इसका प्रिंसिपल क्लास. यहाँ पर क्या सूरत हाल बनेगी, द एग्ज़ाम ये नाउन फॉर्म में है, इसको द एग्ज़ाम ये नाउन फॉर्म में ही रहेगा. वॉज ओवर का मतलब यहाँ देता है एंड, इख्तिताम को पहुँचना, और ये एडजेक्टिवल फॉर्म में है. इसको ओवर की जगह हम एंड, इसको एंड में रखेंगे. और सूटेबल प्रपोजिशन जो है एट, इसको भी इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे. द स्टूडेंट्स वर फ्री एट द एग्ज़ाम. ऊपर हमने क्या किया था, एज द एग्जाम्स वर ओवर द स्टूडेंट्स वर फ्री. The students were free at the end of exam. The students were free at the end of exam. जब एग्ज़ाम्स इख्तिताम को पहुंच गए तो स्टूडेंट्स फ्री हो गए. ये इसका सिंपल सेंटेंस बन गया. यहाँ इसका एक ही फाइनाइट वर्ब काम कर रहा है, वो है वायर, और ऊपर दो सेंटेंस काम, दो हेल्पिंग दो वर्ब्स काम कर रहे थे, एक वॉज और दूसरा वायर भी था. सबऑर्डिनेट क्लास में वॉज था और प्रिंसिपल क्लास में वायर काम कर रहा था. ये इनकी जगह हमने एक ही रख लिया, द स्टूडेंट्स वर फ्री एट द एंड ऑफ एग्जाम. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो रेड से लिखा गया है, ये आप जानिए कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है, और जो ब्लैक से लिखा गया है ये प्रिंसिपल क्लास है. how long her brother will survive. How long her brother will survive is doubtful. Is doubtful प्रिंसिपल क्लास है. How long her brother will survive ये इसका सबऑर्डिनेट क्लास है. The duration of her brother's survival is doubtful. ड्यूरेशन का, how long का मतलब हमने निकाल दिया कि ये टाइम, वक्त है, कितनी देर तक ये, कितने दौरानी तक के वहाँ
बढ़ेगा। हमने इसको ड्यूरेशन अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ इसकी जगह लिख लिया। ऑफ हर ब्रदर्स सर्वाइवल, अपने ब्रदर के ज़िंदगी के बारे में इज़ डाउटफुल, ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसमें हम डाउट। द ड्यूरेशन ऑफ ब्रदर्स सर्वाइवल इज़ डाउटफुल, ये इसका सिंपल सेंटेंस बन गया। अब और एक एग्जाम्पल है, इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द पोअर पीपल विल गेट ए हाउस टू लिव। इट वॉज डिक्लेयर्ड, इसका प्रिंसिपल क्लास है, मेन क्लास है। दैट द पोअर पीपल विल गेट ए हाउस टू लिव, कि जो गरीब लोग हैं वो भी अपना घर जो है, उनको भी घर मिलेगा रहने के लिए। ये इसका सबऑर्डिनेट क्लास है। हम इसको कैसे सिंपल सेंटेंस में तब्दील करेंगे? पहले इसके सबऑर्डिनेटर को ये ज़रूरी है कि इसको निकालना है। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द पोअर पीपल विल get a house to live according to declaration। declared को हमने नाउन फॉर्म में तब्दील कर दिया, इसको बना दिया declaration। according to declaration the poor people will get a house to live in। according to declaration the poor people will get a house to live in। यहाँ पर एक ही फाइनाइट वर्ब काम करता है, वो है गेट। हाउस टू लिव इन, टू लिव, हाउस टू लिव ये फ्रेज है। इसको आप गलत तरीके से मत समझिए कि ये कोई वर्ब वहाँ काम करता है, ऐसा नहीं है। ये बन गया इस तरीके से हमारा सिंपल सेंटेंस। और अकॉर्डिंग टू जो है तो हमने प्रपोजिशन को वहाँ ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और प्रपोजिशन के बजाय हमने दैट को, सबऑर्डिनेटर को निकाल दिया। और फिर से बताता हूँ, डिक्लेयर्ड को हमने डिक्लेरेशन में तब्दील कर दिया। इसी तरह से एग्जाम्पल है, टेल हिम दैट शी डज ए जॉब। टेल हिम दैट शी डज ए जॉब। टेल हिम प्रिंसिपल क्लास है, और सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो है दैट शी डज ए जॉब। सबऑर्डिनेट क्लास एडजेक्टिव और नाउन पर मुनहसर होता है। टेल हिम दैट शी डज ए जॉब, हम क्या करेंगे, जो अबाउट है, अबाउट जो प्रपोजिशन है, इसको हम वहाँ ऐड करेंगे। इसी तरह से जो शी है, दैट शी डज ए जॉब, शी को हम हा में तब्दील करेंगे। इसी तरह से ए जॉब ये नाउन है, ये ए जॉब ही रहेगा। टेल हिम अबाउट हर जॉब। टेल हिम अबाउट हर जॉब, ये इसका सिंपल सेंटेंस बन गया। अब लास्ट एग्जाम्पल है, दैट शी वॉज एब्सेंट इन क्लास प्रूव्स हर टू बी इनोसेंट। दैट शी वॉज एब्सेंट इन द क्लास, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लास है, और प्रूव्स हर टू बी इनोसेंट, ये इसका प्रिंसिपल क्लास है। जो शी है इसको हमने हा में तब्दील कर दिया। इसी तरह से जो एब्सेंट है इसको हमने एब्सेंस बना दिया। her absence in the class proves her to be innocent. Proves her to be innocent. Her absence in the class proves her to be innocent. Proves her to be innocent ऐसे ही रह जाएगा. तो इस तरीके से ये
हमारा जो आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करती हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में तब्दील कैसे कर सकते हैं हम, इसको हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर दिया. Hope that you will watch the lesson very carefully and attentively, and have a nice day. Thank you very much.